So students, in our previous lecture, we have completed up to coelom. Okay, that is the body cavity, and we have studied that on the basis of body cavity, organisms can be divided into three categories. That is the animal kingdoms. Okay, that is acoelomate, pseudocoelomate, and coelomate. Okay, and again we have divided coelomate into categories. That is pseudocoelom and the enterocoelom. Now the next criteria is the segmentation. Okay, our next criteria is segmentation. So students, we know that what is this segmentation? Okay, means it is the division or differentiation of the body parts. हम बोल सकते हैं body parts का division या body का division, ठीक है, not body parts, body का division and differentiation into distinct portion, ठीक है, और उस portion को हम क्या कहेंगे, segments कहेंगे. Okay, so what we can write here, the division or differentiation of body into distinct portion. Okay, and this portion will be called as what? इस portion को हम क्या कहेंगे, segments कहेंगे, called segments. Got it? Now the body can be divided externally or the internally. Okay, if it is divided externally, it is called as external segmentation. If it is divided internally, internal segmentation. And if it is divided both, means the body is divided by both external as well as internal, it can be called as the metameric segmentation. So our first is external segmentation. Okay, so as I told you, this external segmentation means the body can be divided into different segments by externally. Okay, इसको हम externally divide कर सकते हैं like this. There is no internal segmentation, only the external one. Okay, and each segments will be called as what? यहाँ पे जो each segment है ये तो external divide है, इसको क्या कहेंगे, segments. Each part is called as segments. Okay, and such type of external segmentation or such type of segmentation will be found in arthropoda. या arthropoda में पाया जाएगा. Okay, insects and all. Now the second one, अगर हम बात करें तो वो internal segmentation. तो बच्चों एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में क्या था, बाहर से डिवाइडेड था, ठीक है. इंटरनल क्या होगा, इंटरनली डिवाइड होगा, सिंपल सा बात है, लाइक दिस. Okay, and this is the segmentation. Look at it, internally the body is divided, not externally, and this will be called as the segments. And such type of such internal segmentation is found in chordates. For example, man. Man is also internal segment. Okay. Now the last one, that is the third type, is the metameric segmentation. Okay.
Third is metameric. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, व्हाट इज दिस मेटामेयर? अगर हम मेटामेयर बोलते हैं या मेटामेरिज्म बोलते हैं तो इससे हम क्या समझते हैं, ठीक है? सो मेटामेरिज्म अगर हम कहते हैं तो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? दैट मीन्स द लीनियर रिपीटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है? लीनियरली बॉडी पार्ट्स का रिपीटेशन, ओके, इसको हम मेटामेरिज्म कहेंगे, which leads to further division or which leads to the segmentation. So I am writing here, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे एज ए नोट देता हूँ, NOTE, ओके। मैंने क्या बोला था, मेटामेरिज्म क्या है? तो मेटामेरिज्म लीनियर रिपीटेशन बोलते हैं इसको, लीनियर रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और स्ट्रक्चर, ओके, which further leads to segmentation, which is further leading to segmentation। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बोला, लीनियर रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट और स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म हो गया, ओके। और ये जो मेटामेरिज्म है वो, इसके बाद क्या हो रहा है देखिए, वो किसको लीड कर रहा है? सेगमेंटेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट इज मेटामेरिज्म and this metamerism is further leading to segmentation. That way it is called as the metameric segmentation. Now what happens in this metameric segmentation? Okay, there will be the formation of metamer। यहाँ पे metamer का formation होता है, ठीक है? और इस टाइप के segmentation में हमको दोनों segmentation मिलेंगे, that is the external as well as internal। So what we can say, external segmentation plus internal segmentation will lead to, will give the metameric segmentation। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्लस इंटरनल सेगमेंटेशन विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू व्हाट, ये दोनों मिलकर क्या देगा हमको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ओके। नाउ, नाउ सच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटेशन। इसी को ट्रू सेगमेंटेशन भी कहते हैं, ओके। एंड we know that the two segmentation are found in annelida, ठीक है? यहाँ पे annelida में ये two segmentation पाया जाता है, ओके। तो ये चलिए एग्जांपल हम बाद में लिख देंगे, पहले डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। So this is the external one, external segmentation हुआ ये, देखिए एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, एंड also the body will be divided internally। यहाँ बॉडी को इंटरनली भी डिवाइड करेंगे, और ये हो गया इंटरनल सेगमेंटेशन, ओके। तो देखिए एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। Got it? And each part will be called as, each segments will be called as metamer, ओके। एंड बच्चों मैंने क्या बोला था, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एनीलिडा। एनीलिडा में ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो जिस किसी ऑर्गेनिज्म में मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा, मींस मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाएगा, उसको हम ट्रू सेगमेंटेड बोलेंगे, ठीक है? तो एनीलिडा में क्या हो रहा है, जहाँ पे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसको? इंटरनल सेगमेंटेशन। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, here in this case in annelida, external segmentation correspond with or correspond to
internal segmentation. ओके, तो ये तो रहा आपका सेगमेंटेशन के बारे में। मीन्स इसमें हमने आपको तीन तरह का बताया। पहला बताया एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, दूसरा इंटरनल सेगमेंटेशन और तीसरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो बच्चों इसके अलावा एक और तरह का सेगमेंटेशन मिलता है, ठीक है, एनिमल किंगडम में, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। So let's discuss that one also. Pseudo metamedicine. So students, we know that pseudo means false। यहाँ पे pseudo का मतलब क्या हो जाएगा, false हो जाता है। And metamerism means segmentation, क्या, और metamerism हो गया segments। So what it becomes, false segmentation, okay? And this false segmentation is basically found in one phylum, that is called as platyhelminthes। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, ओके। platyhelminthes, that is the tapeworm। always remember this example, okay। examples बहुत ही important होता है animal kingdom में, okay। I am giving a star mark, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। now one more thing, यहाँ पे platyhelminthes में मीन्स अगर pseudometamerism देखें तो यहाँ पे एक और टर्म मिलता है बच्चों, जिसको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स, ओके। दिस टर्म इज प्रोग्लोटिड्स। एक और टर्म पाया जाएगा, ये भी आप लोग स्टार मार्क दे दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोग्लोटिड्स, ओके। ये जो प्रोग्लोटिड्स है, ये बेसिकली हम प्लैटीहेल्मिन्थेस, सॉरी, ये टेपवर्म के सेगमेंट्स के बोलते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स को हम प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेगमेंट्स ऑफ टेपवर्म is called as proglottids। और जो टेपवर्म का जो सेगमेंट्स है, ये बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। मींस दे आर बडेड ऑफ, ठीक है, दे आर बडेड ऑफ मींस ये बाहर निकला हुआ होगा, ओके। proglottids are basically budded off means bud like, ठीक है, bud, that is the outgrowth, okay, from the neck region, from the neck region, and are not of embryonic origin, ठीक है। ये embryonic origin इसका नहीं होता है, and are not of not of embryonic origin, ओके। तो बच्चों मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे, सीडोमेटामेरिज्म का एग्जांपल क्या, प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस में फॉल्स सेगमेंटेशन पाया जा रहा है और उसके सेगमेंट्स को हम प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्लोटिड्स है इसका एम्ब्रायनिक ओरिजिन नहीं है, ठीक है। ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर की तरह बाहर निकला हुआ रहेगा, ठीक है, फ्रॉम द विच रीजन, फ्रॉम द नेक रीजन, ओके। हेंस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सीडोमेटामेरिज्म, इसलिए इसको स्यूडोमेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया क्यों कहा जाता है इसको स्यूडोमेटामेरिज्म, तो हम क्या कहेंगे, इसका एम्ब्रायनिक ओरिजिन नहीं होता है, ये नेक रीजन से निकला हुआ स्ट्रक्चर है, अंडरस्टूड, ओके। एंड हियर आल्सो द बॉडी इज नॉट इंटरनली डिवाइडेड। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनली डिवीजन नहीं होता है। तो एक और पॉइंट हमें मिल गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द बॉडी इज नॉट इंटरनली डिवाइडेड, ओके। तो सीक्वेंस सेगमेंटेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में ये सब पॉइंट्स आ जाएगा बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीडो मेटामेरिज्म का तो क्या हुआ, फॉल्स सेगमेंटेशन। ये किसमें पाया जाएगा, प्लैटीहेल्मिन्थेस में, एग्जांपल के टेपवर्म हो गया। और इसके जो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। अब इसको फॉल्स सेगमेंटेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका ओरिजिन एम्ब्रायनिक नहीं, एम्ब्रायनिक ओरिजिन इसका नहीं होता है, ठीक है। कहाँ से निकला होता है, नेक रीजन से एक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ रहता है, ओके। So students,
बिफोर मूविंग टू द नोटोकॉर्ड, हम लोग जरा सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। So let's start with the digestive system. डिफरेंट सिस्टम्स का हम देख लो। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सो द ऑर्गन्स व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, सो अब बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, किसी में क्या होता है कि लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक एंड क्लोज होता है, एक एंड ओपन होता है, ठीक है। तो उस टाइप के हम बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बोलते थे, ठीक है। और एक मैंने बताया था आपको ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ठीक है। सो नाउ नाउ अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जहां से फूड पास करता है, ठीक है, फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये भी दो टाइप्स का, मैं बार बार कह, दो टाइप्स का होता है। तो एक हो जाएगा, ठीक है, द फर्स्ट विल हैव द सिंगल ओपनिंग। एक होगा जिसके पास, जिसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिंगल ओपनिंग होगा, ठीक है, लाइक दिस। दिस इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट्स वन एंड इज क्लोज्ड, ये एंड जो है वो क्लोज्ड है, और ये एंड क्या है, ये एंड ओपन है, ठीक है। सो इट हैज सिंगल ओपनिंग, इट इज ओपन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल ओपनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। सिंगल ओपनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया ये। सो यहाँ पे जो ये सिंगल ओपनिंग है, ये दोनों ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब इनटेक और आउटफ्लो दोनों, ठीक है। तो ये दोनों का काम करता है। दिस सिंगल ओपनिंग विल एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। ये माउथ का भी काम कर रहा है और एनस का भी काम कर रहा है। तो माउथ से क्या होता है, इंजेशन, और एनस से इजेशन। ओके, एनस क्या कर रहा है, इजेशन में हेल्प करता है, माउथ इंजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज द इजेशन मेथड, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ such type of digestive tract are found in Cnidaria, that is the Coelenterata, and Platyhelminthes, जिसको हम flatworm भी कहते हैं। Okay, and the single opening digestive tract can be called as the incomplete digestive tract. Incomplete बोलेंगे इसको। Okay, now the second one ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। सेकेंड वन इज हैविंग टू ओपनिंग। दूसरे में क्या होगा, दो ओपनिंग पाए जाएंगे, टू ओपनिंग। और इस टाइप के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, सो हियर देयर विल बी द टू ओपनिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। और बॉडी प्लान में बताया था आपको ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान के बारे में। तो ये मान लीजिए, ये जो ओपनिंग है, ये किसका काम कर रहा है, ये माउथ का काम कर रहा है। ओके, और ये जो है, ये एनस का काम कर रहा है। ओके, सो माउथ से क्या होता है, इंजेशन होगा, और एनस से क्या होगा, इजेशन होगा। नाउ such type of body plan or such type of this digestive is found in, अगर हम बोले तो किसमें पाया जाएगा, राउंड वर्म से लेकर के, दैट इज नीमाटोडा से लेकर के यहाँ पे मैमेलिया तक, ठीक है। नीमाटोडा, दैट इज द नीमैथलमिंथिस, टू मैमेलिया। Okay, that is the mammals, they will have the complete digestive system. Now we are moving on to the circulatory system. डाइजेस्टिव सिस्टम में था, सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर बात करें तो वहां भी दो टाइप होंगे, एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था, जो ओपन टाइप है वो हायर ग्रुप में है, और जो क्लोज टाइप है वो लोअर ग्रुप में, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा होगा। ओके, यहाँ पे जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, सर्कुलेटरी। Yes, on the basis of circulatory system, the organisms can be divided into two categories again. ठीक है,
टू टाइप्स होंगे यहाँ पे भी। पहला मैंने क्या बोला आपको, ओपन टाइप, ओपन टाइप, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ओपन टाइप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मिला था, लेकिन वो ओपन टाइप था एडवांस में, ठीक है, मींस हायर ग्रुप में। लेकिन यहाँ जो ओपन टाइप है ये लोअर ग्रुप में पाया जाता है। व्हाट हैपेंस इन दिस ओपन टाइप, ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड विल रन इनटू ओपन टिश्यू स्पेसेस। यहाँ पे जो है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स वगैरह में नहीं, किस में रन करता, ओपनली रन करता, ठीक है, टिश्यू स्पेसेस में। सो व्हाट विल राइट हियर, द ब्लड runs into open tissue spaces. Okay, and these tissue spaces are called as what, sinuses. इसको sinuses कहते हैं या cavity कहते हैं, ठीक है, small cavities ना। अगर diagrammatically देखें तो पहले हार्ट बनाते हैं, okay, as it is the main organ, and then the organs and all main vessel, और यहाँ पे क्या हुआ, these are the organs, these are the organs, okay, ये organ हो गया, इसको मैंने बोला हार्ट है, ओके। एंड दीज आर द स्पेसेस, देखिए दो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनसेस, दीज आर द गैप, इसको साइनस बोल रहे हैं, ठीक है। इस साइनस में मैंने क्या कहा था, स्मॉल कैविटीज, द गैप, स्मॉल कैविटीज हो गया, ओके। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो ब्लड है, ब्लड डायरेक्टली ओपन टिश्यू स्पेसेस में रन कर रहा है, डायरेक्टली रन कर रहा है, मींस हियर देयर विल बी डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड। यहाँ पे ब्लड और ऑर्गन के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट with organs, okay, with organs, got it. And such type of system, that is the open circulatory system, is found in arthropoda, mollusca, then echinodermata, echinodermata में वैसे तो reduced भी होता है, okay, and hemichordata। और बच्चों ये जो hemichordata है, it is called as the connecting link between chordates and non-chordates, okay, non-chordates और chordates के बीच के connecting link भी कहलाता है hemichordata, got it। Now we are moving on to the closed circulatory system, the second one, closed circulatory, okay। बच्चों ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे जो ब्लड होता है ओपन टिश्यू स्पेसेस में रन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, द ब्लड विल रन इन ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में रन करेगा, एंड दोस ब्लड वेसल्स विल हैव डिफरेंट डायमीटर्स, ओके। उन लोगों का जो डिफरेंट होगा, जो डायमीटर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ओके। जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज, ओके। तो पहले अगर डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इसको, यहाँ देखिए, दिस इज हार्ट, and here there will be the blood vessel, blood vessel हो गया। अब ये तो मेन जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, तो आर्टरीज जैसे डिवाइड होता है कैपिलरीज में, ठीक है। कैपिलरीज स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल डायमीटर होता है कैपिलरीज का, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्गन बना दिया, ठीक है, ये ऑर्गन हो गया सब, ये ऑर्गन हो गया, ठीक है, एंड दिस इज द ब्लड वेसल। तो बच्चों मैंने वहां पे क्या बताया था आपको, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में रन करता है, ओके, ब्लड वेसल्स में रन करेगा और फिर यहाँ से फिर ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, द ब्लड रन्स इन,
the blood runs in series of blood vessels, series of blood vessels, okay, of varying diameter, varying मतलब having different diameter, okay, इन लोगों का जो डायमीटर होगा, जो लीमेट का जो साइज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ओके। अगर आपको पता है जो आर्टरीज होता है ये क्या कैरी करता है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कैपिलरीज क्या है, तो कैपिलरीज इन लोग का ब्रांच होता है, ठीक है, आर्टरीज का जैसे आर्टरी हो गया, तो इस आर्टरी का जो ब्रांच होगा उसको हम कैपिलरीज कहेंगे, अंडरस्टूड। नाउ नाउ व्हाट इज द मेन पॉइंट हियर, तो ये तो चलिए ये तो मेन पॉइंट था, इसके अलावा एक और मेन पॉइंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होगा, ठीक है, जैसे आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज, इनका डेफिनिट बाउंड्रीज होता है और डेफिनिट पाथ भी होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, these blood vessels will have, okay, definite boundaries, okay, and path, ठीक है, and and one more thing जो वहां पे मैंने बताया था, बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, here the organs are not in direct contact with blood, here the organs are not in direct contact, okay, with blood, ठीक है, एंड वन मोर थिंग द एग्जांपल इज लेफ्ट, एग्जांपल हम कहाँ से लिख सकते हैं, तो एनिलिडा से लेकर के पूरा कॉर्डेट्स तक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है, ओके, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वन, ओके, एनिलिडा टू कॉर्डेट। Now students, we are moving on to the next topic, that is the respiratory system. The respiratory system देख लेते हैं, different organisms में कौन कौन से respiratory system पाए जाते हैं, and उसके बाद आज के सेशन का लास्ट टॉपिक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे होगा, ठीक है। सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज फॉर रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन कैसे होगा, कहाँ से होगा, ओके, दैट इज एनर्जी फॉर्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है इसको, एनर्जी प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। सो बच्चों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल किंगडम में आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज भी होते हैं, ठीक है, तो उन लोग में तरह तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाएंगे, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक किंगडम में तो डिफरेंट टाइप्स मिलेगा ही ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे लोअर ग्रुप से, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटोजोआ से एस्केलमिंथिस में कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ टू एस्केलमिंथिस, तो वहां पे जो होता है बच्चों बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, ठीक है, प्रोटोजोआ टू एस्केलमिंथिस, दैट इज द निमाटोडा। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्केलमिंथिस के बाद अगर हम बात करें एनिलिडा का, सो एनिलिडा में स्किन के थ्रू होता है, एंड सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, एग्जाम में आता है, द रेस्पिरेशन ऑकरिंग थ्रू स्किन, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे, ओके। देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, आर्थ्रो मींस जॉइंटेड, पोडा मींस फुट और लेग, ओके। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, लार्जेस्ट होता है ये फाइलम, ठीक है,
आर्थ्रोपोडा का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंसेक्ट का, ठीक है, अगर हम इंसेक्ट की बात करें बच्चों तो वहां पे क्या मिलेगा हमको? ट्रैकिया, इंसेक्टा, ट्रैकिया पाया जाएगा। ये चार्ट को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देन कम्स क्रस्टेशिया, इन क्रस्टेशिया देयर विल बी गिल्स, देन स्कॉर्पियन, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में आ जाता है बुक लंग्स, एंड फाइनली द किंग क्रैब। एक किंग क्रैब जिसको हम क्या कहते हैं? लिमुलस भी बोला जाता है, एंड दिस लिमुलस इज कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल। इसमें बुक गिल्स पाया जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि किंग क्रैब को क्या कहा जाता है? लिमुलस, और किंग क्रैब एक और नाम उसका, ठीक है, और इसी को लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वन। नाउ द मोलास्का, नेक्स्ट इज मोलास्का। दैट इज द सॉफ्ट बॉडी एनिमल, मोलास्का हैविंग सेल। तो मोलास्का में बच्चों टीनिडिया होता है, ठीक है, टीनिडिया, टीनिडिया। बहुत लोगों को ये पहली बार अगर टर्म सुनने को मिल रहा है तो आप लोग जान जाइए टीनिडिया होता क्या है, ठीक है। बेसिकली दिस टीनिडिया इज अ फेदर लाइक गिल्स, ओके, गिल्स होगा जो कि फेदर लाइक होता है, फेदर लाइक गिल्स, ओके, एंड दिस टीनिडिया विल आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, गॉट इट, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा, ओके, टीनिडिया will also help in excretion. Now, next is echinodermata. अब चलते हैं इकिनोडर्माटा। तो बच्चों इकिनोडर्माटा में भी क्या होता है कि बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस। देन कम्स हेमिकॉर्डेटा, in hemichordata it is gills, and finally the chordates. The chordates will have gills, lungs, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स में, एक ग्रुप है, मीन्स एक क्लास है जिसको एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया में फ्रॉग मिलता है, ठीक है। तो फ्रॉग में बच्चों स्किन भी पाया जाता है, ठीक है, गिल्स भी पाया जाता है, स्किन से भी होगा, गिल से भी होगा, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी मिलेगा, दैट इज बक्कल कैविटी एंड द फेरिंक्स, ओके, एंड फाइनली लंग्स, ओके, द एडेड वन, ठीक है। गिल्स, आपको जो गिल्स भी है लंग्स भी है। तो एम्फीबिया हम क्यों बोलते हैं? एम्फीबिया मीन्स दे विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज वाटर एज वेल एज लैंड, ठीक है, इसलिए उसको एम्फी बोलते हैं। एम्फी मीन्स बोथ है। फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल दे विल रिक्वायर लैंड एज वेल एज वाटर, ठीक है। वाटर में क्या करता है? अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, लार्वा से टैडपोल बनता है, और ये टैडपोल जब मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें, तो वो एडल्ट दैट इज फ्रॉग बन के फिर लैंड पे आता है, तब उसमें लंग्स से होगा, ठीक है। और स्किन से कब करेगा? स्किन से करता है ड्यूरिंग इनएक्टिव पीरियड, दैट इज ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड ऑल, जब हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विंटर सीजन में जो हाइबरनेट करता है फ्रॉग, ठीक है, तो उस समय इनएक्टिव रहता है, तो स्किन के थ्रू होगा, ओके। हाँ, तो आप लोग टेबल बच्चों जो चार्ट होगा इसका, ओके, बना करके अच्छे से रख लीजिएगा, और हमेशा इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं। As we know that what is excretion, it is the removal of undigested waste material from the body, okay, excretory system। अगर बच्चों वो मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है तो उसको डिफेकेशन कहेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नाउ अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोटोजोआ। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोटोजोआ, प्रोटो मींस फर्स्ट होता है, जोआ मींस एनिमल्स होता है, प्रोटोजोआ
protozoa, that is the first animal. Protozoa to ctenophora. ओके तो बच्चों प्रोटोजोआ से टीनोफोरा तक क्या होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लैटीहेल्मिन्थेस का, तो बच्चों प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, ओके। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्लैटीहेल्मिन्थेस, दैट इज द फ्लैटवर्म। अब तो बच्चों आप लोगों को फाइलम का नाम याद हो गया होगा, ओके। प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया। Okay, that's flam cells. Yeah, and these are sometimes also called as solenocytes. This is also direct question. बच्चों ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आता है एग्जाम में। देन निमाटोडा, शॉर्ट में लिख देता है, एस्केलमिंथिस थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग भी याद रखें, निमेथलमिंथिस और निमाटोडा और एस्केलमिंथिस, ओके। इन लोग में भी प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, but the cells are not called as flame cells in this case. cells को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है। these are the intracellular tube, ये जो रेनेट सेल्स होता है इंट्रासेलुलर ट्यूब की तरह होता है। then एनिलिडा, अब जो एनिलिडा आया, एनिलिडा में नेफ्रीडिया मिलता है, ठीक है। तो देखिए ये डेवलप होगा नेफ्रीडिया, ये नेफ्रीडिया डेवलप, ये प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, आप नेफ्रीडिया। तो प्लैटिनमेंटिस में बच्चों देखिए मैंने क्या बताया, प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या है, फ्लेम सेल्स दिख रहा है आपको, सेलोसाइट्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया में रेनेट सेल्स इन निमाटोडा एंड नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन एनिलिडा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, तो बच्चों जो आर्थ्रोपोडा में अगेन डिफरेंट क्लासेस विल बी देयर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंसेक्टा से। तो बच्चों इंसेक्टा में क्या होता है, मैलफिजियन ट्यूब पाया जाता है, ओके। आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, मैलफिजियन ट्यूब। देन कम्स क्रस्टेशिया। In crustacea there will be antennary gland, this antennary gland is sometimes also called as maxillary gland or green gland, okay। maxillary या green gland भी बोलते हैं, तो antennary, maxillary या green gland तीनों सेम है इसका क्रस्टेशिया का, ठीक है। then comes scorpion. In scorpion there will be coxal gland, और यही कॉक्सल ग्लैंड हमको किसमें मिलेगा, लिम्बुलस में, दैट इज किंग क्रैब, किंग क्रैब में भी सेम होगा, ओके, कॉक्सल ग्लैंड। Now we are left with mollusca, echinodermata, hemichordata and chordata. So students, in mollusca, मोलास्का क्यों बोलते हैं अभी बता दे रहे हैं हम, इसको सॉफ्ट बॉडी कहा जाता है, ठीक है। मोलास्का में क्या पाया जाता है, किडनी, but not well developed, and sometimes they are also called as Keber's organ, Keber apostrophe S, Keber's organ or organ of Bosanus. Okay, next is Echinodermata. In Echinodermata, body surface will take part in excretion. Hemichordata, जस्ट आप लोग को इसका नाम याद रखना अभी फिलहाल, ठीक है। जब हम लोग एक एक फाइल को पढ़ेंगे तो फिर से ये चीजें आएंगी सामने, ओके। इट इज प्रोबोसिस ग्लैंड, बट देन यू हैव टू टेल द आंसर, तब उस समय आपको आंसर बोलना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली द कॉर्डेट, इन कॉर्डेट्स वी नो देयर विल बी किडनी, ठीक है, यहाँ पे किडनी पाया जाता है। So this is all about the excretory system. So that's all for today. Okay, meet you in the next session. Okay, thank you.